Hello, student. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, here I am, Alka Srivastava, going to give a presentation on venture capital. So, firstly, we should know that what is venture capital. Venture capital means it is a combined combination of venture and capital. Venture means a project or activity that involves risk. Capital, the money or fund needed for the business. So, what is venture capital? The capital invested in the project in which there is a substantial element of risk, typically a new or expanding business. Capital investment in the project in which there is substantial element of risk, एक ऐसा बिजनेस और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत सारे रिस्क अपने साथ लेके चलता है, उसमें जब हम पैसा लगाते हैं तो उसे कहा जाता है वेंचर कैपिटल. पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल का मीनिंग हम इस बात से समझ सकते हैं कि स्टार्टअप कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फंड की ज़रूरत होती है. कंपनी में प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी को देखते हुए बड़े इन्वेस्टर्स जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा होता है, वे इस कंपनी या वेंचर में लॉन्ग टाइम के लिए ह्यूज प्रॉफिट अर्न करने के लिए मोटिव से अपना पैसा लगाती है. तो अब ये क्लियर करना ज़रूरी है कि एंजल इन्वेस्टर्स भी वेंचर कैपिटल ही की तरह ही काम करते हैं या उनसे अलग हैं. तो एंजल इन्वेस्टर्स एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, पर वेंचर कैपिटल जनरली कोई कंपनी या फर्म होती है जो किसी स्टार्टअप में दूसरों का पैसा लगाती है. सो नाउ व्हाट इज वेंचर कैपिटल? स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग ए बिजनेस ऑलवेज रिक्वायर कैपिटल. There are a number of alternative methods to fund growth. This includes the owner or proprietor's own capital, arranging debt finance, or seeking an equity partners as in the case with the private equity and venture capital. किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसे काफ़ी फंड्स की ज़रूरत होती है. वो फंड उसको ओनर को कहाँ से मिल सकता है, चाहे ओनर की खुद की प्रॉपर्टी से, अरेंजिंग डेप्ट फाइनेंस कहीं से उधार लेके, एंड सीकिंग एन इक्विटी पार्टनर किसी कंपनी में इक्विटी पार्टनर्स के रूप में, एज इन द केस विद प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल. फाइनेंस में भी रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टअप डेवलपमेंट एक्सपेंशन और परचेज ऑफ द कंपनी. फाइनेंस किस किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है? या तो स्टार्ट करने के लिए, या बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, या एक्सपेंशन के लिए, या फिर कोई भी कंपनी अगर हम परचेज करना चाहते हैं तो भी हमें फ़ंड की ज़रूरत होती है. Now, companies or ventures that have limited operating history and hence may find it difficult to raise funds through an equity or debt offering. New companies जो मार्केट में तुरंत आती है, जिनके पास जो स्टार्टअप करने जा रही है, उनके पास लिमिटेड फंड का सोर्सेज होता है और उनकी हिस्ट्री भी ऐसी नहीं होती है कि उनके पास सफिशिएंट फंड हो. Hence, they find it difficult to raise fund. So in that case, they can raise funds through venture capital. In such a scenario, venture capitalist investors play a pivot role in investing unfinanced area to promote new venture. So here, venture capitalists plays an important role in financing the new startup company. And there is a difference between venture capitalists and angel investors. Venture capitalists are an investment firm that makes venture investments providing capital or startup or expansion. They are looking for higher rate of return, bringing their managerial abilities to small businesses with great potential growth. Venture capitalists वो होते हैं जो ऐसे स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं जिनके पास पोटेंशियल होती है, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जिनको फंड की ज़रूरत होती है, और ये एक फर्म होते हैं. वेंचर कैपिटल एक फर्म होती है, बट बिजनेस एंजल्स आर प्राइवेट इन्वेस्टर्स. दे आर द प्राइवेट इन्वेस्टर्स विद ह्यूज पर्सनल कैपिटल. They are the private capital who have lots of money
looking forward to invest, and they want to invest their money on such a business which has a growth potential, which are not helped by financial institution, but they are not helped by financial institutions, so the angel investors come forward to help the new startup. So now we will understand what is the meaning of venture capital. Venture capital is a private institutional investment made to start up companies at early stage. Venture capital fund are the investment made by investors who seek private equity stakes in small to medium business which are potent enough to grow. And the SEBI had defined venture capital fund in its regulations 1996 as fund established in the form of company or trust which raise money through loans, donations, issue of securities और यूनिट एज द केस में भी. ये सेबी के अकॉर्डिंग ये वो कंपनी होती है जो फंड स्टैब्लिश इन द फॉर्म ऑफ कंपनी और ट्रस्ट विच रेजेस मनी थ्रू लोन्स, या तो वो लोन के थ्रू या एज ए डोनेशन या फिर सिक्योरिटीज़ अपनी इशू करके उनको फंड प्रोवाइड करती है. Venture capital. The concept of venture capital was formally introduced in India in 1987 by IDBI. ये सबसे पहले ये कंसेप्ट किसने लाया था? IDBI में 1987 में. The government levied a 5% cess on all know-how import payment to create the venture fund. ICICI started venture capitalist activity in the same year. उसी साल 1987 में ICICI ने भी ये फैसिलिटीज़ वेंचर कैपिटल्स की एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी. लेटर ऑन ICICI फ्लोटेड ए सेपरेट वेंचर कैपिटल जैसे TDICI. इन्होंने सेपरेट एक वेंचर कैपिटल कंपनी ही चलाने लगे TDICI के नाम से. अब हम ये देखेंगे कि हमारे कौन कौन से स्टेजेस हैं ऑफ वेंचर कैपिटल. सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेज होता है जो सीड मनी जिसे कहते हैं. इसका मीनिंग होता है लो लेवल फाइनेंसिंग नीडेड टू प्रूव ए न्यू आइडिया. वेन एवर देयर इज न्यू आइडिया केम इन द मार्केट, then this company is providing seed money to bring this idea into a plan. They are generally providing this fund for 7 to 10 years, and there are extremely high risk in investing such type of ideas. Activity to be financed. Which activity to be financed in this stage? For supporting a concept or idea or R&D for product development. Whenever there is idea in any venturist जो नए स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके आइडिया को प्रोमोट करने के लिए और उन्हें और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए सीड मनी दी जाती है इनिशियल स्टेज में. व्हेन देयर is no physical appearance of the business, when the business is only in the new idea. Then the next step comes is startup stage. Early stage firms that need funding for expenses associated with marketing and product development. ये वो स्टेज होती है जिस स्टेज में आइडिया को हम एक प्लान और एक प्रोडक्ट का एक रूप देने जाते हैं. जब विद मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एट दिस स्टेज वी आर गिविंग अ idea, making a product from that. Idea is converted into real business, and we are giving the fund for the period of 5 to 9 years, and there is very high risk, and this fund is given for initializing operations or developing prototypes. Then the first stage come after the seed money and startup stage. The first stage comes with early sales and manufacturing fund. जब हमारे बिजनेस तुरंत एग्जिस्टेंस में आता है तो अर्ली सेल्स, उसके सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को चलाने के लिए इस फर्स्ट स्टेज में फंड दिया जाता है जो 3 to 7 years का होता है. और एट दिस स्टेज ऑल्सो देयर इज़ अ हाई रिस्क.
and the fund is provided to start commercial production and marketing. Fund is provided to start the production and marketing of the product. Now the second stage comes. In this stage, working capital for early stage companies that are selling product but not yet turning a profit. In this stage, the firm is started their business but still they are not getting their profit. And this at this second stage, the firm is giving a fund for 3 to 5 years. And there is also a risk, but not extreme risk, but less than extremely. It means sufficiently high. And this fund is provided to expand the market and growing working capital need. And next come the third stage. At the third stage, also called mezzanine financing. This is expansion money for newly profitable company. This fund is provided to expand the business for newly profitable company. When the firm start getting profit from the business, and if the firm want to expand its business, then at this stage the fund is provided for 1 to 3 years. And there is a medium risk because the firm is already started earning a profit. So fund is given to the firm for market expansion, acquisition and product and development for profit making company. These funds are provided for profit making company for their expansion and acquisitions. Now the last stage come, which is also called bridge financing. It is intended to finance the going public process. It is the stage when the new venture is going to be public, and this fund is provided for 1 to 3 years, and there is very low risk of loss because the firm is already earning a huge profit, and this fund is provided for facilitating public issues. So how to get venture capitalists? As we know that venture capitalist firms जैसे बिजनेस को वेंचर कैपिटल दे सकते हैं जिस स्टार्टअप में उन्हें लगता है कि इसमें प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता है, उसी को ये वेंचर कैपिटलिस्ट फंड प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप का मोटिव बिजनेस में लॉस इनकर करने के कभी नहीं होता, इसलिए वेंचर कैपिटलिस्ट एक स्टार्टअप में कई क्वालिटीज़ को जज करते हैं ताकि वे इस डिसीजन पर पहुंच पाएँ कि वो इस वेंचर में इन्वेस्ट करें या ना करें। इसलिए ऐसे स्टार्टअप जो भी इस वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड अर्न करना चाहते हैं, उनको ये ज़रूरी है कि वे कोई स्ट्रॉन्ग या इफ़ेक्टिव बिजनेस प्लान बनाकर किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के फर्म में जमा कराएं। और अगर उन्हें बिजनेस प्लान इंटरेस्टिंग लगा, अगर वेंचर कैपिटलिस्ट को बिजनेस प्लान इंटरेस्टिंग लगा, तो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म उस स्टार्टअप के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जिसमें उसके अदर फैक्टर्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जैसे बिजनेस मॉडल, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट और भी ऑपरेटिंग हिस्ट्री होती है जो उनके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाता है बिफोर इन्वेस्टिंग इन न्यू स्टार्टअप। इन वेंचर कैपिटलिस्ट के पास हर फील्ड से जुड़े लोग होते हैं जो अलग अलग फील्ड से जुड़े बिजनेस प्लान और बिजनेस की डिटेल रखते हैं। इसीलिए जब भी इनके पास कोई भी फर्म, स्टार्टअप फर्म आती है, तो ये उसके बारे में, उसके डिटेल के बारे में हर एक फील्ड के पास, चूँकि इनके पास स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो उस फील्ड के बारे में सारी डिटेल रखते हैं, तो उसको उस न्यू बिजनेस को एनालाइज किया जाता है कि वेदर देयर इज़ अ चांस ऑफ प्रॉफिट और ग्रोथ और सक्सेसफुल chance of success of business is there or not. Now we will come to our next topic, which is a type of venture capital financing. Various types of venture capital are classified based on their application on various stage of business. First is early stage financing, then expansion financing, then acquisition financing, as we have seen in our earlier slides. Now we will come at the process of venture capitalist financing.
And the first is deal origination, then second is screening, then evaluation, then deal negotiation, and then comes the post investment activity, and at last exit plan. So at deal origination stage, there is a continuous flow of deal is essential for venture capital business. वेंचर कैपिटल को चलाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ उनके पास हमेशा लगातार एक कंटिन्यूस फ्लो रहे डील का, उनके पास डील आती रहे। डील में ओरिजिनेट इन वेरियस वे, रेफरल सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डील। Deal may be referred to the venture capitalists through their parent organization, trade partners, इंडस्ट्री एसोसिएशन, फ्रेंड एक्स्ट्रा। अब उनके पास वेंचर कैपिटल के पास डील कहाँ से आती हो, या तो उनके पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन उनको भेजें डील, या फिर ट्रेड पार्टनर्स होते हैं जो वो उनको वेंचर कैपिटल्स की डील भेजते हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन या फिर फ्रेंड्स के थ्रू। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है स्क्रीनिंग। Venture capital financing carry out initial screening of all the project on the basis of some broad criteria. अब जो भी डील्स उनके पास आती है वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, वो उसमें से स्क्रीनिंग करते हैं, वो हर एक प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम ब्रॉड क्राइटेरिया। वो उनके पास कुछ क्राइटेरिया होती है जिस बेसिस पे उसकी स्क्रीनिंग की जाती है कि किस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना और किसको रिजेक्ट करना है। For example, the screening process may limit project to area in which the venture capital is familiar in terms of technology or product or market scope. अब जैसे कि किसी भी प्रोजेक्ट का स्क्रीनिंग करते समय ये देखा जाता है कि जो भी फॉर्म आई है, क्या वो टेक्नोलॉजी से अपडेटेड है कि नहीं, प्रोडक्ट है कि नहीं, मार्केट स्कोप उस बिजनेस का कितना है। The size of investment, geographical location and stage of financing could also be used for screening criteria. कि उनको कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उनका जोग्राफिकल लोकेशन कैसा है, क्या वो उस जोग्राफिकल लोकेशन पे बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, या फिर स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग, या किस स्टेज पे हमें उन्हें कितना फाइनेंस करना है। ये सारी चीज़ें उनके स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में आती है। फिर नेक्स्ट है थर्ड स्टेज है ड्यू डिलिजेंस। Most venture capitalists ask for business plans to make an assessment of the possible risk. जो भी बिजनेस प्लान है, जो न्यू स्टार्टअप कंपनी है, उनको एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान बना के देना होता है वेंचर कैपिटलिस्ट को। वेंचर कैपिटलिस्ट हमेशा एक बिजनेस प्लान की डिमांड करते हैं ताकि उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है उस बिजनेस में, या कितना रेट ऑफ रिटर्न उसे मिल सकता, वो एनालाइज किया जा सके। Business plans contain detailed information about the proposed venture. और बिजनेस प्लान में हर एक चीज़ मेंशन रहता है कि पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन कि जो वेंचर में हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, कब लॉन्च करने, कितना प्रॉफिट दे सकता है, उसमें उसके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, एवरीथिंग इज मेंशन देयर इन देयर बिजनेस प्लान। द इवैल्यूएशन ऑफ वेंचर बाय वेंचर कैपिटलिस्ट फंड इन इंडिया इंक्लूड प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन। अब उसमें क्या क्या चीज़ें इवैल्यूएट की जाती है, पहला आता है प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन। द एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू provide a brief profile of the proposed venture to estimate prima facie eligibility. अब जो एप्लीकेंट्स है उसको अपने बिजनेस प्लान में एक ब्रीफ प्रोफाइल देनी होती है हर एक चीज़ की, ताकि वो ये दिखा सके, ये प्रूव कर सके कि वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट टू गेट द फंड। Next stage is detailed evaluation. Once the preliminary evaluation is over, the proposal is evaluated in greater detail. After the evaluation process is over, if the firm is selected for the proposal, then the proposal is evaluated in greater detail. उसके बाद यही proposal को detail में analyze किया जाता है। Venture capital finance in India expect the entrepreneurs to have integrity, long-term vision, urge to grow, managerial skill, कॉमर्शियल ओरिएंटेशन। अब जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस होते हैं इंडिया में, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स से, जो भी न्यू स्टार्टअप बिजनेस के लिए आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, कि उनके पास लॉन्ग टर्म विजन है कि नहीं, वेदर दे आर वर्किंग फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और फॉर शॉर्ट टर्म, वेदर दे वांट टू ग्रो और नॉट, वेदर देयर इज अ क्यूरियोसिटी इन देम,
where there is an urge to grow, or what are their managerial skill, what are their commercial orientation. Everything is analyzed at this field, this stage. Venture capital financing in India is also make the risk analysis of the proposed project. अब जो भी इस वेंचर कैपिटल न्यू स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, वो सबसे पहले ये एनालाइज करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर हम फंड लगाते हैं तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ रिस्क, विच इंक्लूड प्रोडक्ट रिस्क, मार्केट रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क एंड एंटरप्रेन्योर रिस्क। इसमें कई तरीके के रिस्क आते हैं, जो पहला है प्रोडक्ट रिस्क, फिर मार्केट रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, एंटरप्रेन्योर रिस्क। द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। अब जब भी ये रिस्क को देख लिया जाता है कि कितना प्रोडक्ट रिस्क है, प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, कि फेलियर हो जाएगा, whether the demand of the consumer will change and this existing product will fail or not, or what is the market risk, what is the chances to our competitors to launch their new product, or whether there is a market risk or not, technological risk, whether the technology is going to be updated or changed in near future. So what are the technological risks? After analyzing all this risk, the final decision is taken after expected risk return trade off. Next stage is deal structuring. In this process, the venture capitalist and the venture company negotiate the टर्म्स ऑफ द डील। अब इस स्टेज पे वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो वेंचर कंपनी से नेगोशिएट करती है डील। दैट इज द अमाउंट, फॉर्म एंड द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। किस चीज़ के लिए नेगोशिएट होता है, उसकी अमाउंट की, कितना फंड उनको दिया जाए, इस पे नेगोशिएशन होता है वेंचर कैपिटलिस्ट और वेंचर कंपनी के बीच में। और प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट की, कितने इन्वेस्टमेंट की उनको ज़रूरत है और कितना फंड वो प्रोवाइड कर सकते हैं। This process is termed as deal structuring. The agreement also includes the venture capitalist's right to control the venture company and to change its management if needed. एग्रीमेंट में ये भी इंक्लूड होता है कि क्या वेंचर कैपिटलिस्ट को इस कंपनी के कंट्रोल में कोई राइट मिलेगा कि नहीं, एंड टू चेंज इस मैनेजमेंट इफ़ नीडेड, अगर कोई मैनेजमेंट को चेंज करना है तो क्या वो चेंज कर सकते हैं कि नहीं। बायबैक अरेंजमेंट, एक्विजिशन, मेकिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्या इन सब चीज़ों में कोई नेगोशिएशन की जाती है, एग्रीमेंट किया जाता है कि जब भी एक्विजिशन करना चाहें या आईपीओ भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं कि नहीं। अर्नड आउट अरेंजमेंट स्पेसिफाई द एंटरप्रेन्योर इक्विटी सेल्स एंड ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। Once the deals had been structured and agreement finalized, the venture capitalists generally assume the role of partner and collaborator. अब जब फाइनल स्टेज में डील स्ट्रक्चर हो जाता है, एग्रीमेंट फाइनल हो जाता है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट एज्यूम करते हैं एक रोल पार्टनर का उसी कंपनी में जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है। दे आर एज्यूमिंग देयर रोल एज ए पार्टनर और कोलैबोरेटर। He also gets involved in shaping the direction of the venture. They are not getting only the share in the company, but also they are directing the new company by providing various assistance and various suggestions. The degree of the venture capitalist involvement depend on its policy. अब ये कितना इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा उस कंपनी में वेंचर कैपिटलिस्ट का, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की पॉलिसी है उनके पास, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। It may not, however, be desirable for the venture capitalist to get involved in a day-to-day operation of the venture. जबकि ये ज़रूरी नहीं है और ये सही भी नहीं है कि हर एक दिन के ऑपरेशन में वेंचर कैपिटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो। If a financial or management crisis occurred, the venture capitalist may intervene and even install a new management team. अगर कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है या कोई भी क्राइसिस आती है, तब वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और ताकि एक नया मैनेजमेंट टीम रख सके। नाउ द लास्ट स्टेज कम एग्जिट। वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली वांट टू कैश आउट देयर गेन्स। वो अपने गेन्स जितने होते हैं उसको कैश आउट करना चाहते हैं एट दिस स्टेज इन 5 to 10 ईयर। 5 से 10 साल के अंदर
आफ्टर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इनिशियल, तो वेंचर कैपिटलिस्ट उसके बाद वो अपना पैसा वापस चाहते हैं, कैपिटलिस्ट दे वांट टू एग्जिट फ्रॉम दैट कंपनी. दे प्ले ए पॉजिटिव रोल इन डायरेक्टिंग द कंपनी टूवर्ड पर्टिकुलर एग्जिट रूट. वो कंपनी को एक एग्जिट रूट बताते हैं. दे प्ले पॉजिटिव रोल इन डायरेक्टिंग द कंपनी टूवर्ड पर्टिकुलर एग्जिट रूट, कि किस तरह से वो एग्जिट कर सकती है. ए वेंचर में एग्जिस्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे. कैसे कैसे वे एग्जिट कर सकते हैं. देयर आर 4 वेज ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट टू एग्जिस्ट इन इन्वेस्टमेंट. किस किस तरह से एग्जिट कर सकती है. पहला है आईपीओ, या फिर एक्विजिशन बाय अनदर कंपनी, या फिर रीपर्चेज ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट शेयर बाय इन्वेस्टी कंपनी, या परचेज ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट शेयर्स बाय द थर्ड कंपनी. तो ये सारे तरीके हैं किस तरह से फर्म कोई भी एग्जिट कर सकती है. और इसमें एक और चीज़ आपको जानना है कि ये एक्सपेंशन फाइनेंस, इनिशियली द वेंचर has to examine whether the product market position and if possible reposition it to attract new market segment. कि इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे थर्ड स्टेज पे, जो थर्ड स्टेज पे जब हमारा मेज़ानाइन स्टेज आता है, उस स्टेज पे कि कंपनी को रीपोजिशन किया जाना चाहिए कि नहीं. दिस इज ऑल्सो द फेज टू इंट्रोड्यूस द फॉलो अप प्रोडक्ट सर्विस टू अट्रैक्ट द न्यू क्लाइंट एंड द मार्केट. ताकि कभी फर्म को अगर एग्जिट करना है तो रीपोजिशन भी कर सकती है. वेंचर हैज़ ओकेजनली मेड ए वेरी सक्सेसफुल initial market impact and been able to move from the third stage directly to their exit stage. So I hope you all can understand this venture capital. What is venture capital? You are now very clear about the venture capitalists. Thank you. That's all for today.